Namaste everyone. I hope you all are keeping well both physically as well as mentally. I'm Momita Chakraborty, also known to you as Momita Official. Welcome to the very dynamic and powerful SOS series, and we have a very dynamic lady amongst us to share her story of success, and her name is Miss Sakshi Garg. Sakshi has dedicated her career to empowering individuals to unlock their full potential. Apart from this, Sakshi is the National Council member of Youth and Community Empowerment Council under Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, also in short known as WICI. Also, she is connected to G100 Human Rights and Dignity Wing India as National Advisory Member. With over 4 years of experience in the field, Sakshi has helped countless clients develop critical skills such as effective communication, leadership, time management, and problem solving. To know more and read more about her, please visit my website www.momitaofficial.com. And now, without further ado, let's welcome our dynamic leader to share her story of success with all of us, Miss Sakshi Garg. Sakshi, how are you doing? Hi, Momita. I'm good. How are you? I'm also good. Thank you for joining me on the very special Stories of Success, which is in short known as SOS. And I have been looking forward to this because you are our National Council member and you have been very supportive, very kind soul. So yeah, that is very important actually for our youth. So that's why I told you that it will be great if you join us for this special episode. So first of all, tell me how are you today? I am good. I'm good. I'm excited. I'm looking forward to talking to you this way. I'm very excited right now. That's wonderful. You are always so positive and kind. Thank you so much for being you. So, Thank you, Sakshi, Momita. Thank you. Thank you're you for the welcome. appreciation and the support you give to all the members and the love and the hard work you do for the council. Oh my God, that's amazing. That's amazing. I try my best because I may not be able to help everybody financially, but I try my best to support everybody emotionally or whichever is possible on my part. So, because we all know that we are going to die someday and we have nothing to take away, Yeah. not even our body, right? Hmm. So, that's the best thing we can do is being kind, saying something good to others. I agree. But yeah, we also should keep in mind that nobody takes advantage of us, right? Right. Yes. Hmm. Okay. So as you know, that SOS stands for Stories of Success. So I would like you to share your story of success with us today. So the platform is all yours. Please share your story of success with us. Okay. So first of all, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर आई होप कि अगर मैं किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर सकूं अपनी स्टोरी से माय वर्क हियर विल बी डन बिकॉज Yes. यू नेवर नो हु इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू व्हेन दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू सो Hmm. माय स्टोरी बिगिंस इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली मेरे घर पे लड़कियां काम नहीं करती थी ठीक है लाइक व्हेन दे वर 21 22 इज लाइक ओ माय गॉड लेट हो गया है जल्दी शादी करा दो अब 21 22 साल की हो गई हैं इतनी कंजर्वेटिव फैमिली थी मेरी ठीक है सो छोटे शहर से थे भोपाल बड़े कंपैरेटिवली बड़े शहर में शिफ्ट हुए थे सो दे डिड नॉट नो कि अच्छा लड़कियां काम भी करती हैं लड़कियों की ओपिनियंस भी होती हैं Hmm. राइट एंड गर्ल्स कैन हैव देयर ओन मनी राइट वेरी Hmm. लविंग सपोर्टिव फैमिली बट उनकी सोच पुरानी थी Hmm. तो Hmm. फिर आई वेंट टू अ गुड स्कूल दे डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल इज अ वेरी फेमस फ्रेंचाइजी ऑफ इंडिया Very famous. Yeah, yeah. So I have studied from Delhi Public School and वहाँ पे I met friends 11th 12th में they were very career oriented Hmm. वरना मुझे तो क्या लगता था 11th 12th क्लास तक भाई मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी कहीं से 23 साल में शादी हो जाएगी 25 26 साल में बच्चे हो जाएंगे माई लाइफ विल बी सॉर्टेड सो दिस वाज माय करियर प्लान दैट मीन्स नो करियर प्लान राइट तो आई मेट फ्रेंड्स they were very career oriented and they were like क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं एंड आई वाज लाइक भाई मुझे तो पता ही नहीं है ना ही कोई मतलब है इन चीजों से सो धीरे धीरे करके वो सारी बातें ना दिमाग में रजिस्टर होने लग गई फिर ग्रेजुएशन हो गया एमबीए में आई स्टार्टेड माय ओन क्लोथिंग ब्रांड Oh, wow. सेकेंड ईयर एमबीए से आई एम वर्किंग सो आई अच्छा. स्टार्टेड माय ओन ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड जो छोटे लेवल पे ही चालू किया था हमने ये ना सेम है हमारा. Even I अच्छा started from the second year MBA when ओ I was अरे doing वाह MBA. मेरे खुद के कॉलेज में I started working. Anyway, please go ahead. तो इस एज में क्या होता है ना जिसमें अपने भाई को भी बोलती हूँ आप छोटे एज में चालू कर लो ना तो आपके पास Hmm. गलती करने का टाइम रहता है
कोई जर्नी Hmm. नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो आप फेल हो जाओ। सो दैट हैपेंड विद मी। ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड चालू किया। एक्चुअली क्लोथिंग ब्रांड का मेरी जिंदगी में पर्पस था कि मुझे जिंदगी सिखाए वो। लोगों से बात करना सीखा, नए नए लोगों से मिलना सीखा, लोगों से डील करना सीखा। अजीब अजीब से लोग मिलते थे कुछ कुछ, तो उन सब से डील करना सीखा। मोटिवेटेड रहना सीखा, अपने आप पे भरोसा करना सीखा। राइट। तो ये सब चीजें सीखी। फिर कोरोना में वो बंद हो गया। Hmm. नहीं सरवाइव कर पाया। और उस टाइम पे आई स्टार्टेड टीचिंग। तो अच्छा। बच्चों को नॉर्मली प्राइमरी में पढ़ाना चालू किया। सो आई रियलाइज कि यार ये सिलेबस खत्म करवाने में तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या मैं कॉपी चेक कर रही हूँ बैठ के, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा था। बट जब बच्चों के साथ गेम्स खेलने होते थे, या उनको कुछ सिखाना होता था अच्छा, या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात करनी होती थी, पब्लिक स्पीकिंग, सो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। लाइक ये है मेरा काम। तो आई वाज थिंकिंग Hmm. हाउ कैन आई टर्न प्लेइंग गेम्स विद चिल्ड्रन इनटू अ प्रोफेशन। राइट, तो वो मेरा मेजर कंसर्न था। सो आई स्टार्टेड क्लासेस। अपने रिश्तेदारों के 3-4 बच्चों को पकड़ के ऑनलाइन मैंने कोरोना के टाइम पे क्लासेस चालू कर दी थी। उसमें मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वगैरह बच्चों को सिखाने लग गई। और धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा चलने लग गया। अप्स एंड डाउन ऑब्वियसली बहुत सारे आए, बट वो अच्छा चलने लग गया। फिर आई शिफ्टेड टू अडल्ट्स। फिर आई टुक Okay. बैचेस, एंड नाउ फाइनली आई एम टेकिंग 1-to-1 सेशंस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं लिटरली जितना एक महीने में अर्न करती थी उससे डबल मैं कभी कभी एक दिन में अर्न कर लेती हूँ। Oh my बाय God. द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आई नेवर इमेजिन्ड दैट इतना अच्छा चलेगा। और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत लगती है ना। आप अब देखते हो दोस्तों के 10-10, 15-15 लाख के पैकेजेस हैं। आप इतना 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हो महीने का। राइट, सो यू Hmm. और फिर आपको थोड़ा लगता है, बट लाइक नहीं, दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई चॉइस। तो डटी रही मैं, फाइनली अब जाके अच्छा चल रहा That's wonderful. May माँ सरस्वती and माँ लक्ष्मी bless you. क्योंकि है। आप जो कर रहे हो, you're doing it not only for yourself, for earning, but हम्म, also for the society, the kids, the adults, and life skill is a very important thing. As I always say, very very important thing. And today's generation is suffering a lot, especially the youth and kids. आई So एग्री। if in case if you are able to support and help even one person, that is going to make a big difference in the future as well. So you're doing a great job, Sakshi. So tell people what is life skill majorly, because क्या होता है ना, हम लोगों को अभी भी इंडियन मेंटेलिटी अभी भी थोड़ा धीरे धीरे सीख रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज देर आर सो मेनी फेजेस ऑफ मेंटल हेल्थ, लाइफ स्किल्स एंड स्टफ लाइक रिलेटेड टू इट, राइट? हम्म। तो आप मुझे अपनी जो जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताइए। ओके, सो बेसिकली लाइफ स्किल्स जैसे हिंदी ट्रांसलेशन हम करें तो भाई जिंदगी जीने की कला। ठीक हम्म। है, तो हम्म। जिंदगी तो हर इंसान जीता है ना। तो ये वाली स्किल्स हर इंसान को आनी चाहिए। अभी क्या स्किल्स है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हम्म। ठीक है, अब कम्युनिकेशन अगर मैं आपको बोलती हूँ तो लोग क्या समझेंगे, भाई इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। नहीं, बट ये नहीं होता कम्युनिकेशन। या ईमेल अच्छे से लिखना आना चाहिए, इंटरव्यू अच्छे से देते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्टवेयर नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है जैसे आप दूसरों से बात करते हो और जैसे आप अपने आप से बात करते हम्म। हो। आई मीट सो मैनी पीपल मोमता, जो बहुत हाईली एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशंस में, लाइक उनके अंडर 50-60-100 लोग काम कर रहे हैं, सो वेल एस्टेब्लिश्ड इन देयर लाइफ, बट खुद से बड़ी नफरत करते हैं वो लोग। हम्म। परफेक्शनिज्म के चक्कर में, या मैं तो वैसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मैं तो अगली हूँ, मैं फेलियर हूँ, ये सब टाइप की बातें करते रहते हैं खुद से। तो दूसरों से तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, द मोस्ट प्रोफेशनल पीपल यू विल मीट, राइट, हम्म। बट द वे यू टॉकिंग टू योरसेल्फ मैटर्स द मोस्ट, राइट। सो अल्टीमेटली टू द कोर देखा जाए तो मैं सेल्फ लव ही सिखा रही हूँ। राइट, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है, एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये मेरा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कम्युनिकेशन लोग तो जानते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, या लव देमसेल्व्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव सेड। तो ये जो आप डेमो सेशन देते हो, लाइक आई डू नॉट नो, वी आर टॉकिंग टेकिंग इट इन बोथ बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. So, what is the what do you say in the one-to-one demo session? Do it for us for free, being a National Council member of Youth and Community Empowerment Council. ओके Momita, I'll ask you to do one activity first. Okay. Okay. Do you have your Hmm. phone with you right now? Yeah, I do. Can you open your front camera of the phone? Okay. Yeah, sure.
I want you to look at yourself, make eye contact with yourself, and Mm-hmm. say this 3 times like you mean it. I love Okay. you and I accept you exactly the way you are. I like you and I love you the way you are, right? I love Yeah. you and I accept you exactly the way you are. I love you and I accept you exactly the way you are. Three Yeah. times. I love you and I accept you exactly the way you are. I love you and I accept you exactly the way you are. I did. How are you feeling? I'm feeling see, I face the camera a lot. I feel good whenever I do this, and this is a very positive thing. I've never done this before. So yeah. Talking to myself feels little weird. Yeah. But yeah, it's good. Because I practice speaking in front of the mirror. But ye acha tha. Like loving myself. Yeah. Were you believing in yourself when you said I love you and I accept you? 50-50, I would say. Because see, I can't say that I love everything about me. Exactly. Because I also have my own flaws, I believe. So that flaws, if I overcome those flaws, I think I will be able to love and accept myself exactly the way I am. I feel that. Now you have to guide me how. See, यही ना जर्नी होती है हमारी, ठीक है? Mhm. Mhm. अब ये वाली एक्टिविटी आप बोल पाए बट यू वर नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ, ठीक है? काफी सारे लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते, लेकिन हम नहीं बोलेंगे मैम, हम इसमें मानते ही नहीं है। काफी सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल बिकॉज ये प्यार खुद से आता नहीं ना जताने। फिर लोग होते हैं कि बोल देते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बट दे लाइक आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। ये वाले सेंटेंस में मैं 100% नहीं मानती हूँ, Hmm. राइट? Hmm. तो हमारी जर्नी इज यहाँ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस। आई गिव यू एन Okay. एग्जाम्पल। यू हैव अ younger brother very close to you, Hmm. right? Very He much. has flaws, right? आपको इरिटेट करता होगा, आपको परेशान करता होगा, छोटा भाई है, सबका छोटे भाइयों की आदत यही रहती है, मेरा राइट? ऑपोजिट है। अच्छा, बट वो उसके उल्टा फ्लॉज मैं होंगे। उसको इरिटेट करती हूँ। बट उसके फ्लॉज होंगे कुछ ना कुछ, हाँ, कुछ तो होंगे, हाँ। है ना? बट हाँ। आपकी तरफ से उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। आप कभी नहीं हाँ। सोचते कि यार और सुधर जाता तो मैं और प्यार करती, ऐसा नहीं नहीं, सोचते, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ। तो वही प्यार जो हम ना दूसरों को दे देते हैं, भाई फ्लॉज एंड अपना है लेकिन, है ना? हम्म। तो वो हमें ना एटीट्यूड खुद के लिए डेवलप करना, अच्छा। क्योंकि हम फ्लॉज हटा देंगे तो भगवान बन जाएंगे, हाँ, वो तो है। है ना? एब्सोल्युटली। कभी हम्म। फ्लॉज नहीं जाने वाले हमारे अंदर से, बट एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। जब हम पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जो एक्सेप्टेंस देते हैं, सिबलिंग्स को जो एक्सेप्टेंस देते हैं, अपने पार्टनर्स को जो एक्सेप्टेंस देते हैं, भाई जैसे भी हैं हमारे लोग हैं, तो हम भी जैसे भी हम्म। हैं अपने। तो वही बस मैं सिखाती हूँ लोगों को करना अल्टीमेटली। कोर हम्म। वाली बात की जाए तो मेरा काम ये रहता है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होती है बहुत ज्यादा, हम फियर्स के बारे में डील करते हैं, हम इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। ये चीजें ओके। तो हमें रोकती है ना आगे बढ़ने से। ये हो गया, एब्सोल्युटली। लोग क्या सोचेंगे, हम्म। फेल हो तो गया। ये जो लाइफ स्किल की ट्रेनिंग होती है, वो बेसिकली हाउ लॉन्ग इज द पीरियड ऑफ टेकिंग कोचिंग फॉर दैट? यू कैन चूज 6 सेशंस और 8 सेशंस, 6 या 8 घंटों में 1 घंटे का एक सेशन रहता है। तो अच्छा। हाँ, तो यू कैन चूज आपको जितना करना है। इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, सो आई टेक हम्म। 10 सेशंस। तो उसमें ओके। पहले मैं आपकी ट्रेनिंग करती हूँ एंड देन आई मेक यू अ ट्रेनर, ऐसा। Okay, so in case if somebody wants to, as I was telling you that some lady wanted to connect with you, and she was asking me that I want to become a trainer, what should I do? And I had no idea, no clue. And आप ये बताइए कि in case if they want to become a trainer, what are the activities they have to do, and would they be given a certificate or so? And if so, from where would the certificate be? सो बेसिकली माई इंस्टीट्यूट इज रजिस्टर्ड, MSME रजिस्टर्ड है एंड ISO सर्टिफाइड है। Okay. तो मेरे इंस्टीट्यूट का ही उनको, द लाइफ स्किल का ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, Mm-hmm. राइट? एंड एक्टिविटीज वगैरह सब मैं सिखाती हूँ। सी, फॉर अ ट्रेनर 2 थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। पहला होता है आपका कंटेंट, आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? हमारे पास हमारा कंटेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं। Mm-hmm.
दूसरा होता है आप कनेक्ट कैसे कर पाते हैं लोगों से, Yes. कैन यू ट्रस्ट मी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी मैं अपने किसी भी क्लाइंट को ये डेमो सेशन देती हूँ, सो आई आस्क, अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे कनेक्टेड फील कर रहे हो भले ही 15 मिनट आधे घंटे में ही, या आप मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो कंटिन्यू विद द क्लास, अदरवाइज आई एम ओनली लाइक आप मेरे पास मत आओ फिर, Hmm. बिकॉज यू हैव टू फील कनेक्टेड विद मी, राइट। I've seen people connected to you. They are like आपके जो reviews है. I've seen women crying and thanking you so much. Oh my God, you have lakhs of followers on Instagram. And Sakshi, like I'm so happy that I do not know how, but we got connected somehow through a particular platform, and that feels amazing when you have a soul sister like Sakshi Garg who is doing a great job and making changes in the lives of so many people. So I want to thank you on behalf of all of them क्योंकि मैंने देखा था एक आपका रिव्यू से रील था शायद, दैट लेडी वाज लिटरली क्राइंग लाइक सेइंग कि मुझे नहीं पता था अब तक कि मेरा इतना वैल्यू है एंड मैं इतना कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, थैंक्स टू साक्षी दैट शी हैज मेड मी डू सो. सो that is life changing, yeah, what you are doing. And I want to learn something like that because I speak on mental health. Because I went through depression on during the COVID times, and that was majorly because of the financial crisis and stuff like that. And business I just started, and then suddenly like everything is locked up and everything. तो वो एक अलग तरीके का डिप्रेशन है. तो डिप्रेशन अलग होता है, एंजाइटी अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, लाइफ स्किल अलग होता है. तो इन केस इफ समबडी वन लाइक आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए होंगे जो मेंटल हेल्थ पे चर्चा करने का सोच के आए होंगे, तो हाउ डू यू लाइक टॉक टू देम एंड हाउ डू यू काउंसिल देम? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी ही आज ही एक ने एनरोल किया है, तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी सिखाते हैं, ओके. एंड वो बच्चों को सिखाना चाहती हैं। तो अच्छा. वो मेरे पास इसलिए आई हैं क्योंकि उनको, उनके पास साइकोलॉजी के लिए कंटेंट तो बहुत है, बट शी डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। वो ओके. कनेक्शन उनका बैठ नहीं पा रहा, जो भी रीजन होगा, ठीक है। ऑनलाइन सेशंस में वो बच्चों का ध्यान कैसे लगा सके 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ऑफलाइन सेशन ले रही हैं तो बच्चों को आप सिखा तो दिया भाई ग्रैटिट्यूड, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें बच्चे, समझ रहे हो। बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी बेटा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, बच्चे सुन लेंगे, बच्चे पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, आप बच्चों को नहीं मतलब है आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो एक ना बहुत ही अच्छी एक्टिविटी फिर मैंने उनको बताई कि आप ये कर सकते हो फॉर काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो हमने क्या, बच्चों के साथ क्या करवाया, बच्चों को बोला आप पर्चियां बनाओ, हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं ना, तो वी मेक चिट्स, ठीक है। सो यू मेक 16 चिट्स या 8 चिट्स, जितने भी आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से, एंड यू राइट डाउन वेरी स्वीट मैसेजेस फॉर देम लाइक थैंक यू ममा, यू आर ब्यूटिफुल पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दादी, भाई के लिए भाभी के लिए प्यारे प्यारे मैसेज जो उनको बोलना है। एंड वी आस्क देम टू हाइड दोज चिट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, दवाई के डब्बे में, फ्रिज में, मसालेदानी के पास, कबर्ड में, ऐसी जगह जहां वो लोग बार बार जाते हैं, जाते राइट। सो इट हैं. वाज अ सरप्राइज फॉर द फैमिली मेंबर्स, वाह. फैमिली मेंबर्स देख रहे थे एंड दे डिस्कवर्ड दिस एंड दे वर सो हैप्पी, और ये कितनी छोटी सी चीज थी, बच्चे वर वेरी हैप्पी, दे वर लाइक मैम, हमारे घर में सब लोग बहुत खुश हो गए, दे हग्ड मी, दे सेड थैंक यू सो मच, सम मैम माय मदर स्टार्टेड क्राइंग, शी वाज सो हैप्पी। तो वाह, कितनी दैट्स सो सिंपल स्वीट. एक्टिविटी है, लेकिन कितनी खुशियां पहुंच गई कितने सारे घरों में, आप सोचो। तो सही में. ये पावर होता है। तो अब जैसे किसी को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया, तो क्या कर सकते हैं ना, मेंटल हेल्थ प्लस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव दोनों साथ में जाता है, ओके. राइट। थेरेपिस्ट जरूरी होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, मैं उनकी इंपॉर्टेंस डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट एब्सोल्युटली. अगर सिर्फ थेरेपिस्ट पे हम छोड़ देंगे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का जिम्मा, तो बहुत कम लोग इस बारे में बात करेंगे, हम्म. राइट। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी डिप्रेशन एंजाइटी ठीक कर दूंगी, मेरा काम नहीं है, आई डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस लाइक दिस, बट व्हाट आई विल टीच यू इज हाउ टू लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। एक बार आपने एक्सेप्टेंस अपनी जिंदगी में ले आया, डरना छोड़ दिया, सी कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं 4 लोगों के सामने, 40-400 लोगों के सामने खड़े होके बात कर लूं, ये कॉन्फिडेंस का एक पार्ट है। कॉन्फिडेंस इज कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं डील कर लूंगी उससे,
जस्ट लाइक श्री कृष्ण। एग्जैक्टली, गीता में लिखा हुआ है। हम्म। आजकल क्या, आई एम लिसनिंग टू गीता, एक इंस्टाग्राम पे है, तो वो रोज एक श्लोक गीता का बताती हैं, राइट। तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप सैल्वेशन चाहते हो, आप ये कर्म के साइकिल से मुक्ति चाहते हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरे ऊपर कंप्लीट भरोसा आपको करना पड़ेगा, कमांड छोड़नी है। भाई मैं जो भी हम्म, करूँ कृष्ण जी संभाल लो। जी तो हाँ। वो एटीट्यूड आप, अब ठीक है, अब कुछ लोग कृष्ण जी में नहीं मानते, तो आप वो खुद में मान, संभाल तो वही रहे हैं, ठीक है, हम्म। मैं संभालूंगी, कुछ भी आएगा मेरी जिंदगी में, ये असली कॉन्फिडेंस है, करेक्ट। राइट। तो वो करेक्ट। हम स्टैब्लिश करते हैं, और ट्रेनर्स को फिर मैं, पहले तो मैं उनका कॉन्फिडेंस और उनका सब कुछ बढ़ाती हूँ, फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि आप अब इसको आगे कैसे लेके जाओ, इसको करियर कैसे बनाओ। अगर आप जैसे टीचर्स हैं तो अपने करिकुलम में इसको कैसे ऐड करो, ठीक है। आपको अगर जैसे बात करनी है, यू टेक डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट वेबिनार्स, डिफरेंट सेमिनार्स, आप पब्लिक में जाते रहते हो, तो एक बात करना अलग होता है, बट हाउ डू यू मेक इट एंगेजिंग, लाइक व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द ऑडियंस। अगर आप उनको थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस लेके वापस भेजोगे ना मौमिता, आप हाँ हाँ। देखोगे ना एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट होंगे, इट्स तो हाँ, एब्सोल्युटली। फीलिंग। यस, आई हैव सीन दैट, क्योंकि इतने सारे सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन गेस्ट लेक्चर देने के बाद दैट ये तो समझ चुकी हूँ कि अगर बच्चे या फिर एडल्ट आप जिनके साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, अगर उनके फेस पे एक एक्सप्रेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, दैट ओनली मीन्स कि वो समझ गए आप जो डिलीवर करना चाहते थे। अगर ऐसा ब्लैंक फेस रहा, देन ऑल्सो यू कम टू नो कि कुछ समझे ही नहीं, मेरे मेरे जो ऑडियंस है वो कुछ समझे ही नहीं। तो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि, और हाँ, ये भी मैंने देखा है कि अगर आप दिल से बोल रहे हो ना, वो दूसरे दिल तक पहुंचता है, ये तो मैं जानती हूँ। है कि नहीं, बिल्कुल। बताइए। तो आपका जो जर्नी है बहुत ही डिफरेंट है, स्पेशली एज यू वेर टॉकिंग कि आप एक स्मॉल छोटे से शहर से आए हो एंड यू हैव अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो थे, दे वेर ऑलरेडी इन ए गोल, लाइक सेट ऑलरेडी। पर आप सोच रहे थे कि मैं अभी क्या करूं, एंड यू वेर थिंकिंग कि चलो उसके बाद तो शादी हो जाने वाली है ग्रेजुएशन के बाद। देन हाउ डिड यू चूज दिस करियर पाथ, लाइफ स्किल्स में कैसे आए? आई गिव यू एन एग्जांपल। हम्म। हम ना, काफी लोग अपने करियर पाथ ऐसे ही नहीं चुन लेते हैं बस, ठीक है। काफी हम्म। लोग वो चुनते हैं जो उनको बचपन में नहीं मिला होता। ओके। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उनको बचपन में बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला, ठीक है, गाइडेंस नहीं मिली, तो उन्होंने एक प्री प्राइमरी स्कूल खोल लिया टू गिव बैक व्हाट शी डिड नॉट गेट। हम्म। मेरे पास बहुत प्यार था, ठीक है, प्यार की ना अभी कमी है, टचवुड, मेरी जिंदगी में ना पहले कमी थी, गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने क्या चुना, ऑटोमेटिकली मैं इस फील्ड में आ गई, प्यार एंड गाइडेंस, ट्रू। है ना। मुझे अपने आप से प्यार नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना पहले कि खुद से प्यार, हाँ। खुद को एक्सेप्ट करो। मैं अपने आप को डम समझती थी, मेरी इंटेलिजेंस की कुछ वैल्यू ही नहीं थी, ना किसी और की नजर में ना मेरी नजर में। नाउ आई मेक श्योर कि मेरे से जो बात करे अपने आप से थोड़ा सा ज्यादा तो प्यार करके ही जाए, राइट। तो आप दैट्स डीप यार। ऑटोमेटिकली ना कहीं आपके थॉट पैटर्न, मतलब इसका सी प्रैक्टिकल आंसर इज समथिंग एल्स, बट मुझे लगता है ये मेरे साथ इमोशनली ऐसा हुआ कि जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली, वो मैं कहीं ना कहीं इधर तक कपड़े बेचते बेचते मैं इधर तक पहुंच ही गई कि अब मैं एज अ फुल टाइम जॉब ये दे। अब आई वॉज ऑलवेज द फ्रेंड जिसके पास सबसे अच्छी एडवाइस है, पहले हम्म। हमेशा से। आई वॉज ऑलवेज द लिसनर फ्रेंड, ऑलवेज द लिसनर फ्रेंड, ऑलवेज द सेंसिबल फ्रेंड ऑफ द ग्रुप, की भाई ये से एडवाइस दे देगी हमको। एंड आई वाज लाइक, भाई पैसे ही कमा लूं मैं एडवाइस फ्री में। नहीं, ये सही है एक्चुअली। मेरे को मेरे कुछ दोस्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते, बिकॉज दे कैन ट्रस्ट मी सो ब्लाइंडली। हम्म। ना मेरा एक ऐसा नेचर है ना, मैं किसी को जज नहीं करती, हम्म। किसी को जज नहीं करती, ये मेरा नेचर ही है। क्योंकि ना मैं कल परसों भी भाई से बात करी थी मेरे, कि भाई मुझे एक बात बता, तू तो मुझे बचपन से जन्म से देख रहा है, तूने कभी मुझे देखा कि मैं मतलब मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि जजमेंट होता क्या है। एग्जैक्टली, हाँ, आई एग्री। हम्म। वो दिमाग में नहीं आता, मतलब मेरे को सुनना है, मैं सुनती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं इंसान वही हूँ जो सुन रही हूँ। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फीलिंग दैट आई एम साक्षी। और हम्म। वो सुन के मैं सोचती हूँ कि अच्छा, ये अगर मैं होती थी तो मैं क्या करती थी, मैं वैसे जवाब देती हूँ लोगों को। है हम्म। ना। अभी देखो, एवरीबडी हैज फ्लॉस इन द सेंस, मेरे में एंगर का प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है डिसऑनेस्टी से और झूठ से।
ये ना दो बातें जो है मुझे बहुत ट्रिगर कर जाती है। उस टाइम पे आई डोंट सी एनीबॉडी लाइक नॉट इवन माई सेल्फ। अगर मैं तो बोलूंगी ही नहीं झूठ, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये एक ट्रेट हो सकता है, ये एक फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप झूठी नहीं बोलोगे तो यू कैन सर्वाइव, बट मेरा प्रॉब्लम ही वही है, मैं नहीं बोल पाती। एंड अगर मैं सुनती भी हूँ ना कि कोई झूठ बोल रहा है और मुझे पता चल रहा है, एंड मेरा इंस्टिंक्ट बहुत हाई है, मेरा इंस्टिंक्ट इतना क्लियर होता है ना कि आई कम टू नो अबाउट पीपल लाइक। नाइस। होता था कि सबको मैं एक बार में नहीं समझ पाती, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार कन्वर्सेशन के बाद में बट आई अंडरस्टैंड, आई डो नॉट नो हाउ, बट आई डू, एंड आई गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट देमसेल्व्स। जब वो नहीं होता, देन समटाइम्स आई हैव टू टेक हार्श डिसीजंस, being a person, if I am working for somebody or holding a particular position, but as a human being मेरा कोई पर्सनल नहीं, ये नहीं है, ग्रज नहीं है किसी के अगेंस्ट में, क्योंकि भाई अपने ही लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। आप सोचो, आप किसके बारे में सोचोगे अभी बैठ कर कि एग्जैक्टली। मैं किसी के बारे में मैं बुरा सोचूं, ये सोचूं, वो सोचूं। मेरा ना बचपन से वो थिंक ही नहीं है। और आई थिंक मैंने ऐसा ना हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बॉडी लड़कियों का है, लेकिन मैं सोचती लड़कों की तरह हूँ। कभी कभार ऐसा सोच लगता है कि मैं लड़की क्यों हूँ यार, क्योंकि लड़की की तरह ना मेरे कोई नेचर है कि मैं गॉसिप करूँ, या फिर मे बी आई एम रॉन्ग सेइंग दिस, पता नहीं। लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है कि मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे पास दोस्त की तरह आओगे ना, तो यू विल फील कि नहीं, ये कोई जज ही नहीं करती, इसको बोल सकते हैं कुछ भी। हम्म। लाइक मेरे को गाली दे के जाओ, तुमको लग रहा है कि इफ यू आर माई फ्रेंड और आपको लग रहा है कि मेरा मन ठीक ठीक नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने बोला मुझे गाली दे दे, हम्म। शांति तो मिले, है ना। इट्स लाइक दैट। It's not about judging, it's about feeling empathic, I feel. So I always say this, that if you want to become a leader, you have to be empathic, जो आप हो। साक्षी, I'm talking about you. यू हम्म। आर एन एम्पैथिक पर्सन। दैट्स वाई आई थिंक, मेरे हिसाब से दैट्स वाई आपके इतने फॉलोअर्स हैं, और आप हमेशा यू आर देयर टू सपोर्ट अदर्स इन टाइम्स ऑफ योर बिजी शेड्यूल ऑल्सो, यू आर helping other council members, you are connected to so many other things also. So what keeps you stay motivated? Because I know, अगर मैं आपको और खुद को एक ही जगह पे रखो, मुझे ये पता है कि जब हम दूसरे का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एब्जॉर्ब करते हैं ना, बीइंग एन एम्पैथ, हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं ड्रेन्ड आउट होते हैं। तो फिर से रिकवर करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप क्या करते हो? हाँ मतलब आप सही कह रहे हो भाई, बहुत सारे लोग सामने आके बहुत सारी चीजें बता देते हैं। आप एक हम्म। अच्छे लोगों की दुनिया में अच्छे लिसनर्स की कमी होती है, और आप बस एक अच्छे लिसनर हो, सो लोग नहीं सोचते, लोग बता देते हैं आपको। राइट, तो भले ही मैं काउंसलिंग वगैरह नहीं करती हूँ, बट मुझे बहुत सारे लोग की बहुत हॉरिबल हॉरिबल चीजें पता रहती हैं, मेरे हम्म। क्लाइंट्स की। हम्म। एंड आई हैव टू डू दिस 6-7 टाइम्स अ डे, क्योंकि मिनिमम इतनी क्लासेस हम्म। दिन भर में हो ही जाती हैं। सो आई फील सो ब्लेस्ड, 6-7 क्लासेस अ डे। पहले ऐसा होता था कि भाई 2-2 3-3 महीने निकल जाते थे, एक भी क्लाइंट नहीं आता था। और अब टच वुड आई एम सेइंग, ओ आई टेक 6-7 क्लाइंट्स अ डे, थैंक गॉड। इट्स वेरी सरियल फीलिंग, आप जिसके लिए काम कर रहे हो यस। तो थोड़ा दिखता है धीरे धीरे करके आपको आता हुआ आपके पास, ठीक है। तो एक ना यार मौमिता, बहुत जरूरी चीज होती है कि यू आर एन एम्पैथ, बट यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल डिटैच्ड। ओके। मतलब जैसे मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने कोई इशू बताया, या मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने कोई इशू बताया, सो एज सुन एज कीप द फोन डाउन, या एज सुन एज शट द लैपटॉप, मैं और वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर मैं अपने ऊपर नहीं आने देती हूँ वो चीज। एक्चुअली द थिंग इज कि आई एम नॉट एन ओवर थिंकर ऑल्सो, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं नहीं आने देती हूँ। एंड आई हैव लर्न कि मेरी प्रॉब्लम्स वो नहीं है, क्योंकि अगर मैं हर इंसान की प्रॉब्लम अपने ऊपर लेने लग जाऊं तो मैं तो खुद ही डिप्रेशन में चली जाऊंगी ना। मैंने इतनी हॉरिबल हॉरिबल चीजें मैं सुनती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, प्लस मैं परेशान हो जाऊंगी, तो मैं कैसे हेल्प करूंगी दूसरों की? हम्म। राइट। काफी बार तो मेरा बस ये काम होता है कि लोगों को एक लिसनिंग ईयर चाहिए होता है, जो कि उनको मेरे से मिल जाता है। सो आई हैव लर्नड दिस आर्ट ऑफ बीइंग अ लिटिल डिटैच्ड, कि लैपटॉप बंद, क्लास खत्म, मीटिंग एंड, फिर नहीं मैं सोचती हूँ उस बारे में। फिर मैं तभी सोचती हूँ जब वो मुझसे फिर से उनकी अगली क्लास में। So you tell us about your journey, that how did your family accept it when you, like, अभी तो आप सक्सेसफुल हो, how did your family take it, take your success? मतलब ऐसा था उनके साथ कि
आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली जिनका समाज में ना अच्छा खासा नाम है। ठीक है। हम्म। तो और मैंने जो कपड़ों का ब्रांड चालू किया था वो ना सस्ते कपड़ों का ब्रांड चालू किया था, लाइक 300 रुपए में 3 टॉप्स मिलेंगे आपको। अच्छा। आई स्टार्टेड समथिंग इन डिस्पोजेबल, मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर चालू किया था। डिस्पोजेबल कुछ नहीं, लाइक वेयर वंस एंड यू डिस्कार्ड देम। आई वाज एन एमए, अच्छा। 22 साल की बच्ची थी यार। ठीक हाँ। है। तो सस्ते कपड़ों वाला ब्रांड चालू किया था, तो बोले कि यार समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, गर्ग साहब की बेटी सस्ते कपड़े बेच रही है, किस टाइप के लोग रहेंगे आसपास, ये सब चीजें धीरे धीरे करके ऑनलाइन हो गया काम ज्यादा। तो फिर और बहुत ज्यादा घूमना, जगह अरे क्यों धूप में घूम रही है, काली हो जाएगी, शादी कैसे करेंगे, पिंपल्स पड़ जाएंगे, शादी कैसे करेंगे, चिल करो ना आराम से, कॉम्प्लेक्शन डार्क नहीं होना चाहिए। और ना ये सब छोटी छोटी चीजें, मैं और मेरी पार्टनर एक्टिवा पे पूरे भोपाल को घूम रहे हैं कि भाई 10-10 5-5 रुपए की बार्गेन कर रहे हैं कि कहाँ से 5-5 रुपए बच जाए हमारे, 40-40 रुपए की बार्गेन हमने की है। इतना कोई घर से पैसे नहीं लिए, कंपटीशन में 10-10 हजार जीत रहे थे, 10-10 हजार रुपए में ही हमने अपना बिजनेस चालू कर दिया था। हम्म। और उसी से सस्टेन कर रहे थे, खुद से कुछ पैसे नहीं लगाए थे हमने। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा फिर प्राइड आना चालू हुआ बाद में कि अच्छा सब तारीफ करने लगे हैं ना लोग कि वो अरे इतनी छोटी उम्र में। एंड उस टाइम पे बिजनेस इतनी women नहीं करती थी 4-5 साल पहले, अभी ज्यादा करने हम्म। लगे हैं। हाँ, ये तो। तो और ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे इतना नहीं चलता था business, हम लोग ने इंस्टाग्राम पे चालू किया था। ओके। फिर आई स्टार्टेड टीचिंग, सो मुझे याद है मेरी प्राइमरी में था ना, प्राइमरी स्कूल में मैंने सिखाना चालू किया था। सो आई रिमेम्बर एक कजन थी, वो उसी स्कूल में पढ़ाती थी, वो उसी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता था। तो वो आई, उन्होंने मेरा क्लोथिंग ब्रांड भी देखा हुआ था, मेरी क्लोथिंग ब्रांड में भी कस्टमर थी, एंड वहां पे भी उन्होंने देखा मुझे, वो अच्छा बड़ा स्कूल था ना भोपाल का, अच्छा खासा नामचीन स्कूल था। सो शी वाज लाइक, पापा को मैसेज किया, आप कितना प्राउड हो गया आपकी बेटी से, आपकी बेटी बिजनेस भी करती है, जॉब भी करती है, वाह। पापा वाज सो हैप्पी। वाह। आई कांट इमेजिन दैट फीलिंग यार, इतनी अच्छी फीलिंग, पापा इतना खुश थे। फिर ये वाला काम तो, अब जब मैंने ये वाला काम चालू किया तब तक तो उनका दिमाग खुल गया। उनका अभी बस हाँ, इतना कि ये तो दिमाग- केपेबल है। हाँ नहीं हाँ। नहीं कि लड़कियां काम करती हैं, ये अच्छा। दिमाग खुल हम्म। गया उनका अभी, खुल गया था अब जाके। अब हम्म। इस काम में तो और ज्यादा। अब क्या है, फेसबुक पे, मतलब फेसबुक पे पता नहीं कहाँ से मेरी 4-1 हजार कुछ फ्रेंड्स हैं द लाइफ स्किल स्कूल के अकाउंट से। और अच्छा। उसमें ना पूरे रिश्तेदार एडेड है। अब आई डोंट यूज फेसबुक, बट क्या होता है हम्म। इंस्टाग्राम से डायरेक्टली फेसबुक पे पोस्ट हो जाती है। हाँ। अब हर रिश्तेदार आपकी बेटी की वीडियोस देखते हैं, हम लोग बहुत अच्छी बातें करती है आपकी बेटी की, उनको नहीं पता मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स है, वो बस मेरे फेसबुक वीडियोस देख के खुश है। तो वाह। हम वीडियोस देखते हैं आपकी बच्ची की, तो पापा को मिल ही जाते हैं ऐसे, पापा मम्मी को ना ऐसे हर शादी में कम से कम 2-3 लोग बोलते ही बोलते हैं। एंड एक बार क्या हुआ था, मैंने पापा के साथ वीडियो डाली थी अपनी अच्छा। इंस्टाग्राम पे, तो उसके व्यूज तो 10-1 हजार ही आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। बट पापा एक बार शॉपिंग कर रहे थे, एंड उनको किसी ने पहचान लिया था, अरे आप साक्षी के पापा हो ना, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। ओ, वाओ, दैट्स द बेस्ट मोमेंट फॉर अ पेरेंट, आई गेस। है ना? हाँ, तो मुझे आज तक ऐसे किसी ने नहीं पहचाने, लेकिन पापा को बड़ी रिकग्निशन मिली। मैंने सुना है पेरेंट्स के लिए बेस्ट मोमेंट होता है कि जब आपके नाम से तो हमेशा बच्चों को जाना जाता है, लेकिन जब आप बच्चों के नाम से जाने जाते हो ना, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस हाँ, मोमेंट फॉर वो देम। बहुत खुश है। तब वाओ, क्या दैट्स होता है, जब भी वंडरफुल मैं यार। उनको बोलती हूँ ना वीडियो में आ जाओ, तो ये गोज एंड गेट्स रेडी कि भाई मुझे तो पहचान लेते हैं लोग, मुझे तो अच्छा दिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो स्वीट ऑफ अडोरेबल। हिम। दैट्स वेरी अडोरेबल, दैट्स वेरी अडोरेबल। तो सो टेल नाउ अस दे आर अबाउट, वेरी हैप्पी। हम्म। या सो टेल अस अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, लाइक आप, यू आर द सिंगल चाइल्ड, राइट? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक छोटा भाई है। आपका भी छोटा भाई है? हाँ अच्छा, हाँ। वो क्या कर रहे हैं? वो अभी पापा के साथ है, हम पापा का एक्चुअली 2 बिजनेस है। एक तेंदू लीव्स है, आपने बीड़ी पत्ता, बीड़ी जिससे बनती है ना, उसका हम्म। पत्ता, तो उसका बिजनेस है हम लोगों का। हम्म। प्लस एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स ओके। हैं। हाँ जी, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास एमपी में। तो अभी मेरा भाई उनके साथ ही जुड़ गया है, विद लुकिंग फॉर डिफरेंट बिजनेस फॉर हिम, बट अभी फिलहाल के लिए तो वो उनके साथ ही जुड़ गया है। ओके, बट यू आर द फर्स्ट बिजनेस वुमन इन योर फैमिली? हाँ, फर्स्ट बिजनेस पूरे खानदान में अरे वाह। चाची दादी बुआएं सब, पूरा दूर दूर तक कोई नहीं है, अब सब मेरे बाद, अब सब है। प्राउड ऑफ यू मैम। लाइक,
अच्छा ये बात लगता है ना कि एक लड़की इतना कुछ करे हमारे देश में, एंड यू आर सेटिंग ए, यू आर बीइंग ए रोल मॉडल फॉर सो मेनी अदर गर्ल्स। तो ये जो इंस्टाग्राम का खेल है, अ, ये कैसा है? आप बोल रहे थे मुझे कि बहुत हार्ड वर्क लगता है, एक एक दिन में कितने सारे पोस्ट करना पड़ता है। कोई कुछ ऐसा सिंक्रोनाइज, क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक होता है ना कि आपको इतने, एल्गोरिदम। हाँ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ऐसा कुछ क्यों मैटर करता है? क्योंकि मैंने मैंने भी देखा है ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें 4-5 कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं लेकिन उनका कोई लाइक ही नहीं आ रहा है। कभी कुछ लोग हैं बहुत फेमस है लेकिन उनके फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं आप जैसे जो इतना अच्छा काइंडनेस स्प्रेड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग जेन्युइन फॉलोअर्स, और आपके लाइक्स भी आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग क्लाइंट्स ऑल्सो थ्रू इंस्टाग्राम। तो इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है? इंस्टाग्राम इज ट्रिकी। हाँ इंस्टाग्राम मतलब मेरा तो पूरा काम खैर इंस्टाग्राम एंड रेफरेंसेस ये दोनों से मेरा पूरा काम आता है अभी फिलहाल। हाँ हाँ। इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको अगर ग्रो करना है तो रील्स बहुत जरूरी हैं आपके लिए। हम्म। एंड रील्स भी ऐसी कि भाई कम से कम हफ्ते में 5 रील्स तो आप डालो। बात। आइडियल है कि आप रोज एक डालो, वरना नहीं हो पाए तो कम से कम हफ्ते में 5 रील्स तो आप डालो। राइट। अब मेरी ना आज क्लाइंट ही मुझसे पूछ रही थी कि आप, अब से मैं स्टोरीज में ना बात करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके, सो आई यूज अ फिल्टर। ठीक है। तो वो बोल रही थी कि आप काजल लिपस्टिक बिना मेकअप के आप स्टोरीज में आ जाते हो, आप लाइक हाउ आर यू सो कंफर्टेबल विद दिस। तो मैंने उनको भी वही समझाया कि इतना ज्यादा डिमांडिंग है सोशल मीडिया, और हम्म। अगर आप अपने आप से ये उम्मीद करोगे कि आई ऑलवेज बी एक्सट्रीमली रेडी जब पॉसिबल मैं नहीं है। कैमरे के सामने जाऊंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। यू हैव टू हम्म। कीप इट इजी गोइंग, जितना इजी गोइंग रख सकते हो उतना इजी गोइंग रखो। इसलिए आई यूज अ फिल्टर कि मैं थोड़ी सी ज्यादा प्रेजेंटेबल दिख जाती हूँ फिल्टर की वजह से, और फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं अब स्टोरी मैंने ऐसे कर ली, रील में आना तो बस एक लिपस्टिक लगा ली। इतना नहीं है इजी ताकत गोइंग कि रखना बैठ है, के ये सब हाँ। सीखो, मेकअप वगैरह। इजी रखना है, जितना इजी हो सकता है उतना इजी रखना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है भाई, जितना इजी हो सकता है। बिल्कुल, एंड द मोर प्रेजेंटेबल भी आपको रहना है, एट द सेम टाइम रिलेटेबल भी आपको रहना है लोगों के साथ में, है ना? बात ये है कि स्टोरी ऑफ सक्सेस जो है ये मेजरली इज फॉर पीपल लाइक यू हु हैव मेड अ डिफरेंस, जिनका स्टोरी सक्सेसफुल है, जैसे आपका स्टोरी सक्सेसफुल हुआ है। तो व्हाट इज द मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू टुडेस व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस टुडे? मेरा मैसेज ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया है ना, तो ये इंतजार मत करो कि यार ये टाइम राइट होगा तो मैं ये कर लूंगी, ये सिचुएशन मेरे फेवर में होगी तो मैं ये कर लूंगी, या मैं ये 4 साल रिसर्च कर लूंगी बैठ के तो मैं ये कर लूंगी, नहीं। या पहले मुझे एकदम एक्सपर्ट होने दो तो मैं ये कर लूंगी, नहीं। एक्सपर्टीज करते करते ही आती है, और जो एक्सपर्टीज करते करते आती है वो बुक्स पढ़ पढ़ के आ ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। तो अग्रीड। आइडिया है, थोड़ी सी रिसर्च करो, अपने इंस्टिंक्ट्स पे वो करो, एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, इंतजार नहीं करना है। हम्म। ठीक है। तो प्लीज किसी का इंतजार नहीं करना है, मन में है वो कोर्स करना है भाई कर लो, अफोर्डेबल है कर लो, मन में है वो बिजनेस चालू करना है भाई कर लो। ठीक है। ज्यादा से हम्म। ज्यादा क्या होगा, हार जाओगे ना, कुछ और कर लेना। हम्म। हारने से क्यों, एग्जैक्टली। फेल होने से क्यों डरना है, हो जाओ फेल। फेलियर मेक्स यू इंटरेस्टिंग। हाँ, और कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है और हमेशा। क्या। अब मैं बोलूं, अरे मैंने बिल्कुल एक दिन अपनी क्लास चालू कर ली, और फिर मेरे पास तो एकदम से 1,000 बच्चे आ गए, फिर मैं एकदम से बहुत अमीर हो गई, फिर मैं एकदम से टेडेक्स में पहुंच गई, एकदम से मुझे नोबेल प्राइज मिल गया, तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनेगा, ना ही मेरे को कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो फेलियर तो करवाओ ना, क्या आप कुछ सुनाओगे क्या लोगों को जा जाके। एंड फेलियर मेक्स यू ए बेटर पर्सन आई थिंक, हाँ क्योंकि उससे भी जो सीखने को मिलता है, आपको रियलिटी ऑफ लाइफ पता चलती है फेलियर से। बिल्कुल। और हमारे सबके लाइफ में तो कोविड आया एज ए फेलियर यू कैन से, बट कोविड ने ही देखना, आप जितने लोग आज तक अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर चुके हैं ना, मतलब मैं अभी की यूथ के बारे में बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने कोविड को फेस किया है एज लाइक अर्निंग पर्सन, ठीक है,
सबने बोला है कि कोविड हैज ब्रॉट सो मच बेटर इन मी। कितने लोग डेफिनेटली। मरे हैं, है ना? लेकिन आप सोचो, जो हम लोग अभी तक जिंदा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, लेकिन हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है कोविड से, है कि नहीं? हाँ, So that completely depends ना कि how you utilize that, even a pandemic. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। Exactly. So that's a very wonderful thing. So you started your business in during COVID, the life हाँ, school. देखो, यस यस, ऑनलाइन क्लासेस ही चालू किया। तो ओके सो कोविड ने तो इतना ऑनलाइन हमें सिखा दिया, वरना मैं भोपाल में रह के अगर कोशिश करती कि भाई भोपाल में रह के मैं एकदम सक्सेसफुल हो जाऊं, छोटा शहर है, ये लोग अभी नहीं समझते हैं ये सब चीजें, तो मुझे तो हम्म अभी और 5 साल लग जाते, बट अभी मैं जहाँ पे मैं हुई नहीं हूँ सक्सेसफुल, धीरे हम्म धीरे धीरे आई एम गोइंग। ठीक है। हम्म एंड वन मोर थिंग विद मी इज कि मुझे नहीं पता, शायद मैंने सिखा सिखा के सीख लिया है या शायद ये बचपन से है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं बड़े काम करने के लिए बनी हूँ। आई नो दैट, मुझे 1 मिनट का भी डाउट नहीं है इस चीज में। या तो वो वाह जिद थी बचपन की जो अभी बिलीफ में बदल गई है, या फिर मैं लोगों को इतना भरोसा करना सिखाती हूँ अपने आप पे, मेरे अंदर भरोसा के, या शायद आई एम मेड फॉर वेरी बिग थिंग्स, तो वो मुझे अभी से पता है, मेरा इंट्यूशन मुझे बताता रहता है। सो आई डोंट डाउट दैट आई विल मेक इट बिग, वेरी बिग इन लाइफ, मुझे पता ही ये होगा। तो वो वाह, एंड आई गॉट भाई। दैट ऑरा फ्रॉम यू, पता है? जिस the day I connected with you, I got that aura from you, that every person has their own aura and vibe. तो एक फिजिकल होती है ऑरा, और एक होता है जब आप किसी से बात करते हो। आई गॉट दैट वाइब एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप डेफिनेटली आगे जाओगे। सही में भाई, भाई थी सही में। हाँ, सही में आई थी, नहीं तो डायरेक्टली आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बी ए नेशनल काउंसिल मेंबर ना। आई टोल्ड यू कि यू कैन बी ए स्टेट काउंसिल मेंबर एज वेल, एंड बट आई वांट टू टेक यू एज ए नेशनल काउंसिल मेंबर बिकॉज दैट्स ऑन अपर अपर लेवल का ये है। एंड देन ऑल्सो आई टोक यू फॉर G100 नेशनल एडवाइजरी मेंबर। तो और नहीं आएगी तो मैं कैसे करूंगी? सही बात है, सही बात है कि नहीं? लेकिन बात ये है ना, साथ में मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका गोल क्या है लाइफ में? आपको कहाँ जाना है? मतलब यू आर सेइंग कि मैं बड़ी तो बनूंगी, आई विल गो समवेयर, बट हैव यू सेट अप एनी टारगेट और गोल, या फिर आपको बस अभी चलते जाना है एंड यू नो दैट यू विल रीच समवेयर? हाउ इज इट? यार। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, गोल्स मैंने सेट किए थे, वो पूरे नहीं हुए, कुछ और ही हो गया। हाँ, समझ रहे ओके। हो? तो अब हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं गोल अभी सेट नहीं करती, अभी मैं थोड़ा रुक जाती अच्छा। हूँ, एंड आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटी। तो क्या होता है, मैं गोल सेट कर लूंगी तो फिर आई मूव इन दैट डायरेक्शन। हम्म ये बाकी डायरेक्शंस तो छूट रही है ना। हम्म समझ रहे हो आप? सो हाँ एट दिस मोमेंट हो सकता है 1-2 महीने बाद आई विल गिव यू अ डिफरेंट आंसर, बट एट दिस हाँ, मोमेंट बाय चॉइस आई डोंट हैव अ गोल। ओके, दैट्स गुड। मतलब यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, है ना? That's wonderful. And lastly, I would like to describe yourself in 3 words. परसिस्टेंट, Wow, काइंड, absolutely true. हार्ड वर्किंग। That is also very true. You're very kind, yeah. Like the most relevant thing, apart from all these 3 things, are the most important thing which I connect to is that you are very kind. You're very kind, and I love people who are kind, and that's why I love you. आई लव यू मोमिता, थैंक यू सो मच। You're most welcome. You're like a sister to me. Every time I feel that. Like whenever I was talking to you when I fell sick also that day. I don't know what is going wrong. From so many days I was sick. But I had some pre-scheduled meetings, okay, like online sessions. मैं वही ऐसे ही बैठी बुखार लेके, but I never made them feel कि I am sick because I understand. क्योंकि मैं जैसे एम्पैथ हूँ, उनको भी शायद लग जाए कि अरे ये बीमार है तो नेक्स्ट किसी और दिन कर देंगे, तो आई डू नॉट। मैं ऐसे प्रेजेंट करने का कोशिश करती हूँ कि चलो मैं ठीक हूँ, मैं सेशन कर रही हूँ, ठीक है चलो। क्योंकि उनका भी टाइम कुछ उन्होंने सेट करके किया होगा। सो आई ऑलवेज थिंक मोर अबाउट अदर देन माई सेल्फ, which is very bad for me. I fall sicker than I am. But what you have told me today, I will keep that in mind. कि I have to keep a boundary. जब आपने वो सिक वाली बात बोली थी तो भी मैंने आपको ये बोला था कि प्लीज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। हाँ, ये सारी exactly. चीजें क्या रहता है ना, हम That's ब्रेक it. नहीं लेते तो हमारी बॉडी हमारे लिए ब्रेक ले लेती है। हाँ, थैंक यू सो मच साक्षी कि आप आए, हमको इतना सारा नॉलेजेबल इंसाइट्स दिया। And I'm glad, and I hope that we'll do some other session very soon. And I want people to go ahead and take your classes because
Yeah, it's very rare to find people like you who are genuinely trying to help people. That's why I did this session with you, because there were people who were asking me, and I said, I'll do a session with her. You watch that session, then you will come to know why I suggested her name to you, Okay. right? Hmm. Thank you. थैंक यू सो मच मोहम्मदा, थैंक यू। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, गिविंग मी दिस मच रिस्पेक्ट एंड लव एंड सपोर्ट। थैंक यू मोहम्मदा, थैंक यू सो मच। You are most welcome, dear, and I pray to the Almighty. I'm not saying Hindu, Muslim, Christian, जो भी है, कोई जो है ऊपर परमात्मा आपको हमेशा ब्लेस करे और आपके जैसे लोग और बनाए, ताकि वो लोग दूसरे आत्माओं को हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच मोहम्मदा, थैंक यू। बाय बाय बाय, टेक केयर। बाय, जय बाय। हिंद।